Assalamualaikum students. Today we will work on your e-studies book. Okay. Open your book. This is your page number 7. ठीक है. This is your activity page. What you do on page number 7? Tick the thing which can move and eat by their own. आपने उन चीजों को टिक करना है जो खुद ही मूव कर सकती हैं और खाना खा सकती हैं. ठीक है. इज क्लॉक ईट? नो. ठीक है. और इज बेबी रन? यस. सो यू टिक हियर. प्लांट इज आल्सो अ लिविंग थिंग बट दे कैन नॉट वॉक. But plants grow up, so it is a movement. Bat? No. Hen? Yes. Hen is also a living thing. Okay. Next, this is your page number 8. What you do on page number 8? You do reading here. Living things, as per the name, are live and active. They move, they grow, and they respond to stimuli. Some of the examples of living things around us are plants, animals, and other human beings. Plants, animals, and human beings are living things. Okay, this is your page number 9. What you do on page number 9? Circle the living things. Okay, you have to circle the living things. This is a teddy bear. Is teddy bear a living thing? Yes. And plant is also a living thing. Snake is also a living thing. Dog and ant. Okay. They are living things. So we circle the living things. Okay. This is your page number 10 and chapter number 2. What you do on page number 10? You have to do reading. Non-living things do not grow, move by their own, and respond. Some of the examples of non-living things are chair, table, bat, books. Okay students, non-living things जो होती हैं वो move नहीं कर सकती और ना ही खाना खा सकती हैं, जबकि living things जो होती हैं वो move भी कर सकती हैं, वो बड़ी भी होती हैं और वो खाना भी खाती हैं. हम सब क्या हैं? हम सब लिविंग थिंग्स हैं और हमारे इर्द गिर्द चेयर, टेबल, इवन ये पेंसिल भी जो है ये नॉन लिविंग थिंग है. ओके. टॉयज, बुक्स, माउंटेन्स, टेबल्स, चेयर्स, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. ओके. नाउ दिस इज योर पेज नंबर 11. व्हाट वी डू ऑन पेज नंबर 11? Color the non-living things. Okay, you have to color non-living things. Chair, ठीक है? You have to color in chair. Okay. Like that. You color in chair. And also you have to color in sphere. Or you have to color only in non-living things. Here you color. Okay. These three things are non-living things. Okay. Now this is your page number 12. What you do on page number 12? Look at the picture, draw a line to match the picture with the correct word. Okay, you have to match living thing with the correct word and non-living thing with the non-living word. Okay, living things: camel,
deer and sparrow. And 3 non-living things, house and burger. Okay students, this is your page number 13. What you do on page number 13? Paste 2 living things and 2 non-living things in the box below and label the box. आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 2 non-living things की पिक्चर लगानी है और 2 living things की लगानी है. ओके अंडरस्टैंड? क्या करना है, आपने 2 non-living things की और 2 living things की आप पिक्चर लगाएंगे यहाँ पे. नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 जो है वो एक्सरसाइज है आपके दोनों चैप्टर्स की, जहाँ जो आपने दोनों चैप्टर्स में पढ़ा है. ह्यूमन बीइंग्स देयर लिव एज बेबीज. यस ट्रू. ऑल ह्यूमन बीइंग ग्रो टू द सेम साइज. नो. आप लोग सब साइज में डिफरेंट हो ना, मैं बड़ी हूँ, आप छोटे हो, आपके पापा जो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं. ठीक है, तो सबका साइज जो है वो डिफरेंट होता है. ऑल लिविंग थिंग्स डाई इफ दे डू नॉट ईट फूड और ड्रिंक. यस. प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग्स देयर लिव एज बेबीज. यस. प्लांट्स भी छोटे छोटे होते हैं तभी बड़े होते हैं ना, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी, और एनिमल्स भी. ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो अप. यस, यहाँ पे आप टी लिखेंगे. Next question, are stones living things? No, stone is not a living thing because they cannot eat, they cannot move. Write name of 2 non-living things. Table, okay, and chair. Simple names आप लोग यहाँ पे लिख लें, या आपको कुछ भी और आप non-living thing में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. Write any 3 characteristics of living things. They move. Okay, they move, they grow, they eat. Okay, now your 2 chapters have been completed. On page number 4, this is your exercise. आपने ये exercise जो है learn करनी है. Okay, okay students, Allah Hafiz. See you in the next class. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम आपकी ई स्टडीज़ की किताब पर काम करेंगे. ठीक है, ये आपकी ई स्टडीज़ की किताब है. सबसे पहले हम करेंगे सफ़ा नंबर 126. सफ़ा नंबर 126 पर आपका सबक है रब्बे कायनात. आपने बेटा इसमें सिर्फ रीडिंग, ठीक है, याद करनी है. हम सब मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है, वो अकेला है, उसका कोई मबूद नहीं, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा. वो तमाम जहानों का मालिक है जिसने हर चीज़ को पैदा किया है. वो हम सबका मालिक व मौला है. वो हर जगह मौजूद है. हर मुश्किल में हमें अल्लाह ताला मदद करता है और हमें उसी से मदद मांगनी चाहिए. अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी. वही है जो हर चीज़ की हिफाजत करता है. सूरज, चाँद, सितारे, आसमान, दिन रात उसी की बनाई हुई नेमतें हैं और हमें चाहिए कि हमेशा हर हाल में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें. बेटा आपने इस रीडिंग में जो अहम चीज़ें हैं वो याद करनी है, जैसे कि अल्लाह कितने हैं, अल्लाह एक है, उसका कोई मबूद नहीं, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा है. और अल्लाह ताला कहाँ कहाँ है, अल्लाह ताला हर जगह है. क्या पढ़ा आपने रीडिंग में कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है. और हमें किससे मदद मांगनी चाहिए, हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए. ठीक है, और उसके बाद है कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें जो बनाई हैं हमारे लिए, नेमतें हैं वो हमारे लिए, जैसे सूरज है, सूरज ना हो तो आप लोग कैसे जो है वो दिन में रास्ता तलाश कर सकें. चाँद जो है
सितारे, आसमान, दिन रात सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं और हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है बेटा, इसी रीडिंग में से आपके ये मश्की सवालात हैं जो आपने हल करने हैं। ये कायनात किसने बनाई है? ये कायनात यहाँ आप लिखेंगे अल्लाह ताला ने बनाई है। हम सबको रिज़्क कौन देता है? अल्लाह ताला। ठीक है, हम सबको किससे मदद मांगनी चाहिए? अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला कहाँ कहाँ मौजूद है? हर जगह। ठीक है, अल्लाह ताला यहाँ आपने सिर्फ हर लिखना है। उसके बाद है आपका सफ़ा नंबर 125। उसी सबक से रिलेटेड है आपका ये। अल्लाह ताला की कोई सी 5 नेमतों के आपने यहाँ पे नाम लिखने हैं। सूरज वही लिखने जो आपने पीछे सबक में पढ़े हैं। सूरज, चांद, सितारे, जमीन और आसमान, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद है दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी करें। हमें आंखें, कान, नाक, हाथ, पांव सब किसने दिए हैं? अल्लाह ताला। ठीक है, ये यहाँ से देख के आप फिल करेंगे। हम सब अल्लाह ताला ही की डैश करते हैं। इबादत, अल्लाह ताला किसी के डैश नहीं, मोहताज। जमीन और आसमान को डैश ने बनाया, किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। ठीक है, इस तरह आपका ये सबक नंबर जो था 1 रब्बे कायनात वो मुकम्मल हो गया। आपने इसमें से जो है एक्सरसाइज याद करनी है, इसकी मश्क जो है वो आपने याद करनी है। मश्क में आपने सवाल जवाब याद करने हैं, खाली जगह याद करनी है और साथ में ये जो एक सरगर्मी है वो आपने याद करनी है कि अल्लाह ताला ने हमें कौन सी। आप इसके अलावा भी बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें जो दी हैं आप लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, अगला आपका जो चैप्टर है वो है इल्हामी किताबें। इल्हामी किताबें वो होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से अपने नबियों को दी जाती हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने तकरीबन 1,24,000 नबी भेजे। अल्लाह ताला ने बाज़ नबियों को किताबें भी दी। इन किताबों में अच्छी बातों का हुक्म दिया गया है और बुरी बातों से रोका गया है। इन किताबों को आसमानी किताबें कहते हैं। तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। मशहूर आसमानी किताबें 4 हैं। कौन कौन सी हैं? तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। कुरान मजीद रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ। कुरान मजीद क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई है और इसका एक हरफ पढ़ने से आपको 10 नेकियां मिलती हैं। ठीक है, इस सबक में आपने जो चंद मोटी मोटी बातें हैं आपने वो याद रखनी है। जैसे अल्लाह ताला ने कितने नबी भेजे? 1,24,000। ठीक है, आसमानी किताबों में किन किन बातों का हुक्म था? अच्छी बातों का हुक्म था और बुरी बातों से रोका गया था। कितनी मशहूर किताबें हैं? 4। कौन कौन सी? तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद। तौरात किस पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ठीक है, कुरान मजीद क्या है? अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और किस महीने में नाजिल हुआ? रमज़ान के महीने में। ठीक है बेटा, इसके बाद इसकी मश्क है सफ़ा नंबर 123 पर। कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। आसमानी किताबों में किन बातों का हुक्म होता है? अच्छी बातों का हुक्म दिया गया है और बुरी बातों से रोका गया है। इन किताबों को कौन सी किताबें कहते हैं?
आसमानी, ठीक है। ये खाली जगह आपने लफ्ज लगाकर जो आपको ऊपर दिए गए हैं आपने पुर करनी है। ज़बूर किस पर नाज़िल हुई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। आसमानी किताबों पर ईमान लाना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो रैत किस पर नाज़िल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। और अंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, ठीक है। ये आपने इसकी मश्क याद करनी है और चंद जो मोटी मोटी बातें हैं आपने वो याद करनी है, ठीक है बेटा। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।